The players will walk out in a few minutes out onto the pool side. We will have the player introductions, the referee introductions, and the national anthems before we get along with the game. And there it is, the players of Thailand and Hong Kong, China making their way out onto the pool side. This is the men's classification, 5th to 8th position match here. It's between Thailand and Hong Kong, China. We're all set for the player introductions, the national anthems, and we will get along with the game. Cap number 5, where Sangata Manish. In cap number 6, where Tanakron. In cap number 7, where Superkron. In cap number 8, where Mokshang Poppong. In cap number 9, where Echano. In cap number 11, where Pong Saton. In cap number 13, we have Chonaknon. In cap number 14, we have Wittikron. In cap number 15, we have Kittikron. The head coach of the team is Jaranon Ronakrit. And the assistant coach is Jaranon Washin. In the blue caps, we have team Hong Kong, China. In cap number 8, we have Sheng Hei Men. In cap number 1, we have Ye Yen Lance. In cap number 2, we have Sheng Shun. In cap number 3, we have Sheng Hu. In cap number 4, we have Fong Kong Xing. In cap number 5, we have Yon Xing Yao. In cap number 8, we have Ng Anthony. In cap number 9, we have Ho Jashon. In cap number 10, we have Hin Kit Gilman. In cap number 11, we have Shan Hin. In cap number 12, we have Sheng Hei Shun. In cap number 13, we have Shan Lut In. In cap number 14, we have Lee Wan Matthew. In cap number 15, we have Shan Leong Medwin. The head coach of the team is Rustomov Kirill. And the assistant coach is Ku Yatwa. The referees for the match is Amitov Adil and Fukaya Shu. The video assistant referee is Sadiqov Akbar. The TWPC delegate for this match is Rezbani Mashood. Now may I request everyone, if you are able, to please stand up for the national anthem of Thailand.
followed by the national anthem of Hong Kong, China. आज अपना सेमीफाइनल भी खेलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वालिफायर्स के साथ शुरुआत होगी और दोनों टीम्स को हूटर का ये आदेश कि अपने पूल में आकर शिरकत करे अपने हेड गियर्स पहन के। थाईलैंड का ये लाइनअप है, यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। थाईलैंड के कप्तान मैन चैंग नंबर 8 वो यहाँ पर कप्तानी करेंगे। नंबर 10 दरअसल यहाँ पे आज कप्तानी गिलमान चोई को दी गई है। और ये हांगकांग का लाइनअप कप्तान चैंग हे मान के साथ हांगकांग चाइना। इसमें अगर हम थोड़ा सा रिजिलियंस की बात करें, थोड़ी सी इच्छा शक्ति की बात करें, तो जिस तरह से कल जापान के विरुद्ध ये खेल हांगकांग चाइना ने दिखाया है, जाहिर है उनके हेड कोच किरिल रुस्तोवोव काफ़ी खुश थे, लेकिन परिणाम ज़रूर उनको निराश किया होगा कि क्वार्टर फाइनल में उनका सफ़र रोक दिया गया। ये है थाईलैंड का खेमा और जरानन रोनाकृत उनके हेड कोच और जरानन वसीन उनके असिस्टेंट कोच है। दोनों ही यहाँ पे एक टीम हडल में उनका हौसला बढ़ाते हुए। किशोर, ये जो मुकाबला है, जाहिर है जैसे मैं दूरदर्शन के दर्शकों को बता रहा था कि मेडल का सफ़र भले यहाँ पे ख़त्म हो गया हो, लेकिन क्वालिफायर्स के तौर पे अभी भी ये मुकाबला उतनी ही अहमियत रखता है। Absolutely, and they would want to go ahead and end the tournament on a high note, finish as high as possible in the 8-team league. Obviously, they don't want to finish where in the 7th or the 8th. They would want to finish somewhere on the 5 and 6th place, because the top 4 teams are taken by the losing semi-finalists and, of course, the finalists. So, all in all, it's going to be a really a battle for pride, a battle for supremacy, and let's see who aces this contest. Will it be Thailand or will it be Hong Kong? We would know in about 45 minutes time from it. That's Kiryl Rustamov, the head coach of Hong Kong China there on your screens. He's won the Junior World Championship, has got rich experience of playing across Europe and in Asia as well. He's won medals in the Greece League, the Russian League. And it's time for the first quarter. It's Thailand versus Hong Kong. Adil Aimbetov of Kazakhstan and Shuei Fukaya of Japan will be officiating with this game, with Akbar Sadiko being the VAR official as well. So there is that goalkeeper. Goalkeeper number 13 there. And it will be Thailand in white caps and Hong Kong China in their blue caps, who will be playing out there. Thailand in white caps will attack from left to right. Hong Kong China in blue from right to left. The referee's whistle goes. Time for the team sprint. And it just looks like Thailand got a first hand to it, but possession will be with Hong Kong because he managed to go ahead and just push it way ahead.
Hong Kong get that possession, so it's the sprint that has gone against their name. This is the men's classification 5th to 8th place match. You're watching all this action unfold at the 11th Asian Aquatics Championship here in Ahmedabad, India. The first time that India is hosting a tournament of this magnitude, the Asian Aquatics tournament here. Straight at the skirmish at the goal mouth there, but danger has been averted. It will be an immediate, it'll be a foul, and it will be Ching who will be in the exclusion area. Thailand continue to attack. Centre defender, centre back gets the ball to the left winger, straight on shot on goal, but it is Thailand's Suthian who averts all danger. 1 मिनट के अंदर कोई ऐसा वैलिड अटैक देखने को नहीं मिला है जहां पर कोई सीरियस खतरा मंडराया हो दोनों ही तरफ से। तो एक सहज शुरुआत, एक सधी हुई धीमी शुरुआत। सभी को ज्ञात है कि ये क्वालिफायर मैच है और अगर इस मैच को जीत लेते हैं तो ऊपर पायदान पे फिनिश करेंगे। कि लंबा लॉन्ग रेंज शॉट जरूर आया था वहां पे हांगकांग चाइना की तरफ से। एशोन चेन का कल भी 3 गोल किए थे उन्होंने जब जापान के विरुद्ध वो क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे। तो यहाँ पे शोनचेंग को एक अहम भूमिका भी निभानी होगी अगर इस मैच को हांगकांग चाइना को जीतना है। पूरी ताकत और पुरजोर जद्दोजहद के साथ एक बार आक्रमण में थाईलैंड व्हाइट कैप्स में मार्क किया हुआ है। वहाँ पे होल सेट पॉइंट में अच्छा रिसेप्शन था और टर्निंग भी बेहतरीन थी, लेकिन सीधा गोलकीपर को थमाया। खतरा अभी भी टला नहीं है। रेफरी का इशारा कि उन्हें दोबारा वहां से शॉट लेना होगा। पोजेशन अभी भी थाईलैंड के पास। राइट फ्लैंक से एक फ्री थ्रो के साथ एक बार फिर से मैच रिज्यूम किया है सेंटर ऑफ द पूल में। लॉन्ग रेंज शॉट लेने की जरूरत नहीं है। 3-3 डिफेंडर मार्क है, स्पेस आउट काफी हुआ है। आगे ट्रेड करके जगह क्लोज इन करनी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। सुतिनान का ये सदा हुआ शॉट थाईलैंड को खाता खोल कर देगा। कल गोल नहीं कर पाए थे सुतिनान से, काफी उम्मीदें थी ईरान के विरुद्ध, कोई अवसर नहीं मिला उनको, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। सुतिनान का ये लॉब और शॉट का मिला जुला आक्रमण और नैरो साइड नियर पोस्ट पे अटैक किया था, कोई चूक नहीं और 1-0 से थाईलैंड आगे। 2 मिनट बाद गोल आया है यहाँ पे इस ओपनिंग क्वार्टर में। 8th goal for Sutinan in the Asian Aquatics Championship 2025. And it is Hong Kong China on the attack from the left. The centre forward is being brought down there, so it will be a foul, but the game continues because it's got a free throw there for Hong Kong. Right on attack on goal, and this time it is a goal. The rebound is just gone inside. 1 goal apiece out there, and it is number 4. It is Kong Ching of Hong Kong China who has scored this goal. There you see it was an attempt from Gilman there. The goalkeeper has stopped it with both his hands. The rebound is then put in bound by Gilman out there, by Hong Ching in fact. निश्चित तौर पे एक बराबरी करना एक बड़ी बात होती है शुरुआत में ही। जब अपने क्वार्टर में अगर आप गोल से पिछड़ रहे हो तो आपके मन में सबसे पहले यही रहता है कि मैं गोल की बराबरी करूं, कम से कम दबाव को हटाऊं। वहां पे दोनों ही गोलकीपर को टेस्ट किया जा रहा है इस वक्त। एक बार फिर से आक्रमण में हांगकांग चाइना। गोलकीपर लैंस लू, नंबर 1 टोपी इस वक्त हांगकांग के लिए गोल के पास है, और नंबर 13। क्या ये थाईलैंड के लिए खतरे की घंटी होगी? पिछली बार जब गोल खाया था तो काफी निराश लगे थे चोनोकान, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रिबाउंड पे गोल खाना बहुत हर्ट करता है आपको। अच्छे लंबे पास लेफ्ट राइट से पूरी तरह से आक्रमण बनाया हुआ है, और अब यहाँ पे नंबर 10 एक और गोल करके
बढ़त दिलाएंगे और शॉट आया है गिलमान चोई हिनकित की तरफ से। दूसरा गोल रिप्ले में नजर डालेंगे किस तरह से पूरा समय लेते हुए अंतिम क्षणों में उस स्टाइपुलेटेड 28 सेकंड्स के हर बीतते क्षण के साथ मुश्किलें जरूर बढ़ रही थी, पूरा हाथ घुमाकर पूरी ताकत से फार पोस्ट को टारगेट किया और निशाना एकदम अचूक। 2-1 से हांगकांग इस ओपनिंग क्वार्टर में तो थोड़ा सा धीमी शुरुआत की थी, लेकिन 2 बैक टू बैक गोल्स के साथ हांगकांग इन चाइना ने अपनी इरादे साफ कर दिए। फिलहाल यहाँ पे व्हाइट कैप्स आक्रमण बना रहे हैं। सेंटर ऑफ द पूल से तुतिनान जिन्होंने गोल किया था उनके पास गेंद है, सेंटर ऑफ द पूल से लॉन्ग रेंज शॉट लेना नहीं चाहते, लेकिन सामने होल सेट में खिलाड़ी मौजूद है और ऑफ टैकल पेनल्टी मिलेगी यहाँ पे संभवतः। जी हाँ, जिस तरह से सुतिनन का थ्रो मिला था यहाँ पे सुपरकॉम को, और सुपरकॉम बिल्कुल उस होल सेट 1 मीटर रेंज में थे जहां पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ आपको हानि करवाएगी, और वही हुआ। पेनल्टी यहाँ पे लेंगे कप्तान खुद चोपसोंग, और चोपसोंग उसको पहुंचा देंगे अपने ठिकाने पर। तो 2-2 की बराबरी शुरुआती इन क्षणों में, आधा क्वार्टर हुआ है इस ओपनिंग क्वार्टर का, और ये देखिए कप्तान 30 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी हैं और अपनी टीम थाईलैंड की कप्तानी बहुत सही तरीके से टीम को मार्शल किया है इन्होंने अब तक के इस रन में, इस एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप में। और ये करारा लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे कप्तान का, और 2-2 की बराबरी पर ये ओपनिंग क्वार्टर सो फार। Even Stevens at all in this first quarter. 4 minutes remaining in this first quarter. We're at the halfway stage in the first quarter. Hong Kong, China on the attack. This is straight to the center forward player there, but the defender clears it. Very quick on the counter are Thailand. On the left here, the center back will be summoned as well at some point now. It's on the right wing. And here, oh, that should have been a goal. That absolutely should have gone inside there. But it is Thailand's Supercom who has missed an opportunity. Hong Kong, China looking to take that lead here. Slowly building the attack. They've got about 10 seconds, 9-8 seconds to finish this. But they lose possession of the ball because of a foul here. The possession is with Thailand now. Right straight. Possession still with Thailand out there, and both the teams, as we've discussed, they're coming into this contest after losing their respective quarterfinals. Thailand lost to Iran, Hong Kong lost to Japan. Straight to the goalkeeper. And this classification match would do a lot of good for that if they go ahead and win this contest. The loser of this match will play the 7th and 8th. Shot on goal, the left-hander, but it is averted. The alert goalkeeper averts all danger there. That's Chankonam of Thailand who averts the danger. लो स्कोरिंग जरूर है, अभी तक 2 मिनट बचे हैं इस ओपनिंग क्वार्टर में। आक्रमण में एक बार फिर से यहाँ थाईलैंड, अगर थाईलैंड स्कोर करता है तो उन्हें मानसिक रूप से इस मैच के अंदर जो एडवांटेज मिलेगा, जिसकी उन्हें तलाश भी है संभवतः। यहाँ पे एक और पेनल्टी, और इस पेनल्टी को भी अगर स्कोर करता है थाईलैंड, पिछली बार कप्तान चोमसोंग को ये अवसर मिला था, अब यहाँ पे एक बार फिर से परीक्षा होगी यूयान लुई की। हांगकांग के गोलकीपर अंडर द बार, अंडर द फायर, और सुतिनान यहाँ मौका नहीं छोड़ेंगे। दूसरा गोल ये थाईलैंड का, और पेनल्टी भी कन्वर्ट करने में कामयाब। तो 2 पेनल्टी कन्वर्जन्स, और दोनों ही 3-1, 3-2 से अब इस मैच में ये आगे चल रहा है। थाईलैंड के अगर तेवर की बात करें, वो कहीं ज़्यादा सकारात्मक और आक्रामक दोनों ही रूप से थाईलैंड ने इस ओपनिंग क्वार्टर को अब तक डोमिनेट किया। और हांगकांग चाइना
कल मिली जापान के विरुद्ध उस हार से काफ़ी हताश लग रहा है अब तक। किरिल के वॉर्ड्स इस वक्त थोड़ी सी परेशानी में, नीली कैप का ये आक्रमण, लेकिन मिड ऑफ द पूल में, सेंटर ऑफ द पूल में उनको रोकने का पूरा प्रयास करते हुए एक लंबे लॉब के साथ इस फैले हुए स्कैटर्ड फील्ड को बुनाने का प्रयास। एक खिलाड़ी पूरी तरह से अनमार्क था वहां पे, खुद भी शॉट ले सकते थे वहां पे चुआंग, जिनको लेफ्ट फ्लैंक पे गेंद मिली थी, उनके पास नियर पोस्ट पे गैप भी था। लेकिन जब भी आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग आर्म नहीं है, जैसे कि ये एक वीक आर्म का शॉट इस वक्त हांगकांग चाइना ने लिया, तो आप शॉट और स्नीकी पासेस पे ज्यादा निर्भर करते हैं, और वही काम यहाँ पे हांगकांग चाइना करने का प्रयास कर रहा था। इसके मुकाबले थाईलैंड ज्यादा बेहतर सधा हुआ नजर आया। अच्छा काम यहाँ पे गोलकीपर हांगकांग चाइना का इयान से लुई दौड़ लगाकर उस गेंद को कब्जा करने में कामयाब रहे। ये है जरनन रोनाकृत, हेड कोच थाईलैंड के। संतुष्ट होंगे वो अभी तक के प्रदर्शन से थाईलैंड के इस क्वार्टर में। Chance for Hong Kong China to equalize here, get back on level terms. They've got 5 seconds to complete this move, but it is Chan Konan who has averted the danger once again for Thailand there. Sets the ball in motion again. Thailand will have to be very quick in their counters. This is on the right now. The ball goes back to the centre back. The wingers on the left and right are providing excellent support to the centre back and to the centre forward as well. It's gone on the left out there. The possession is still with Thailand, but they run out of time. So Hong Kong will restart the attack from the goalkeeper. Hong Kong's coach Kirill Rustamov. He's got very good experience of playing across Europe. He's played in Australia as well, as won tournaments in Perth, Hungary, Kazakhstan, Israel. There's a chance at goal. The frame comes in between. The rebound goes to the Thailand player, goes to the defense. The attack cannot consolidate from here. There's a long range shot. A very long range shot there from Thailand, because the hooter was about to buzz any time. And at the end of the first quarter, we've got Thailand with 3 goals and Hong Kong China on 2 goals. A 1-goal lead is absolutely never ever sufficient in water polo. And there you see the Hong Kong China team. They're looking a little tensed out there. The body language is not extremely positive as well, and that's the end of the first quarter. Thailand 3, Hong Kong 2. थाईलैंड का ये स्कोर 3-2 से, और ये बहुत आसानी से 3-1 भी हो सकता था अगर वो रिबाउंड पे गोल ना अंदर जाता थाईलैंड के। फिलहाल यहाँ पे स्टैट्स पे देखिए किस तरह से कंपैरिजन में आपको पता चलेगा कि लगभग अभी तक बराबर स्प्रिंट्स हालांकि हांगकांग चाइना ने जीती थी, लेकिन एक छोटे ही मार्जिन से सही ये क्वार्टर थाईलैंड के नाम है। और अगर यहाँ से ये इस फाउंडेशन पे, इस आधार पे एक अच्छी इमारत खड़ी करने में कामयाब होते हैं, तो मुझे नहीं लगता किशोर यहाँ पे किसी तरह की समस्या पेश आनी चाहिए थाईलैंड को। एक बेहतर टीम लगी है कम से कम इस बीते पिछले 8 मिनट में, इस पहले ओपनिंग क्वार्टर में। किरिल जिस तरह से लगातार अपने वार्ड्स का, अपने टीम का प्रोत्साहन कर रहे हैं और लगातार उनकी त्रुटियों पर उनका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे अगर वो चूक हुई है, जैसे अभी अंतिम क्षणों में एक हाई बार से टकराकर उनका जो शॉट था वो बाहर चला गया था, अगर इस तरह के अवसर हांगकांग चाइना गंवाएगा तो इन नीली टोपी वालों को समस्याएं होंगी। फिलहाल यहाँ पे दूसरे क्वार्टर के लिए दोनों टीम्स पूल के अंदर कूद चुकी हैं और ये क्वालिफाइंग राउंड है अगले साल होने वाली एशियन गेम्स के लिए 5वीं से 8वीं पायदान के लिए। थाईलैंड बनाम हांगकांग चाइना का ये दूसरा क्वार्टर अब इस हूटर के साथ आरंभ होता हुआ और इस स्प्रिंट की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित किए दोनों टीम्स, क्योंकि ना सिर्फ मनोबल बल्कि अपनी ऊर्जा और आक्रामकता का भी परिचय उस स्प्रिंट को जीतना होता है। संभवतः ये हांगकांग चाइना कंफर्टेबली यहाँ पे
इस स्प्रिंट को जीतेगा और गेंद को अच्छी खासी समय से पोजेस करके रखा यहाँ पे कप्तान मैनचांग ने। कप्तान चैंग ने एक बार फिर से राइट फ्लैंक पे जो शॉट दिया था, अवसर अच्छा था, पूरा समय लिया, लेकिन ये नंबर 13 का खिलाड़ी थाईलैंड के लिए एक दीवार बन के उभरा है। चनोकान एक बार फिर से दीवार बन के साबित हुए थाईलैंड के लिए और गोल करने का अवसर एक बार गंवाया है यहाँ हांगकांग चाइना ने। अब आक्रमण में गेंद मिली थी, फाउल मिलना चाहिए यहाँ पे। भाग्यशाली रहे कि पेनल्टी नहीं मिली, केवल एक फ्री थ्रो के साथ काम चलाया क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस में वो शॉट नहीं था। अब यहां से पोजेशन टर्नओवर और आक्रमण में आया है हांगकांग चाइना। Hong Kong China slowly getting into the groove out there. There it is, they're building the attack from the back. We've seen how Chanoknan has been really good in goal. 8 out of 8 chances that have come past him, he's stopped 6 of them. Make it 7 out of 9. And he's been really great in goal for Thailand. He's got a 78% save rate, which is really good in water polo. He's done very well out there. This time, Inaz Liu says, I'm not left behind. I will also pull off spectacular saves, and that's what he does. That is his 5th save in 8 attempts, and the referee takes over the ball because there is a review that the teams have taken. चेन्योम वहां पे लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण ले रहे थे और थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। फिलहाल यहाँ पे गोल और नो गोल का रिव्यू लिया जा रहा है। जाहिर है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतनी बड़ी प्रतियोगिता में होना भी चाहिए ताकि किसी भी तरह की त्रुटि किसी अनजस्टिफाइड डिसीजन का बायस ना बन जाए। Checking whether it's a goal or not a goal there, and it's about the Chanakran save there because it just looked like it might have just gone into goal. There the referee is the referee has decided that it was a goal there. What a review it was taken by the Hong Kong team. They've equalized here. This was the save that the Thailand goalkeeper Chanoknan did earlier. And the goal has come for that. तो चनियोम का जो शॉट आया था जिसे बखूबी वहां पे रोका भी गया था, लेकिन उसके बाद जो रिव्यू लिया, बहुत कुछ घटा है इस दूसरे क्वार्टर के शुरुआती क्षणों में ही। आक्रमण दोनों की तरफ से नलीफाई किए, गोलकीपर्स का बेहद अहम रोल रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से बीट कर दिए जाएंगे नीली टोपी के इस बाएं हाथ के खिलाड़ी का जो प्रहार था। आप देखिए 10 नंबर के चोमसोंग कप्तान खुद यहाँ पे इस गोल को ले रहे थे बाएं हाथ की तरफ से। बढ़िया शॉट और किरिल को निराशा होना पड़ा यहाँ पे। 4-3 से अभी हाल ही में बराबर किया था। गोल रिव्यू लेने के बाद गोल दिया गया था हांगकांग चाइना को, लेकिन उसका प्रतिशोध लेते हुए थाईलैंड के कप्तान चुमसोंग ने वो राइट फ्लैंक से लेफ्ट हैंडेड एक करारा शॉट लिया और कोई अवसर नहीं वहां पे यांस लुई के लिए। 4 for Thailand, 3 for Hong Kong China. The game is getting a little intense as the second quarter progresses. Hong Kong China have netted one more. Every time Thailand have managed to take a lead, Hong Kong China have drawn level here. The 4th goal there for Hong Kong China, scored by the captain Heyman. कप्तान के प्रहार का जवाब कप्तान ने दिया है। अभी चुमसोंग ने गोल किया था थाईलैंड के लिए, तो यहां पे चैंग ने भी जवाब दिया, लीडिंग बाय द एग्जांपल। कप्तान का एक राइट हैंड और राइट फ्लैंक से सदा हुआ शॉट। The game restarts from the center. 4-all as we speak. Got about 6 minutes remaining in the second quarter.
Remember, this is a classification match for the 5th to the 8th position. A long range shot there. That was from Sutinan. It hits the frame of the goal, bounces back into play. Thailand still have the possession here. Sutinan again. This time he tries to pass it to the centre forward, but the alert defense clears the danger out there, and they are the fans. And you can see on the big screen. There's an opportunity here for Hong Kong. Defense is trying to clear it. They end up making a foul out there. It's outside the 1 meter circle. So possession is there with Hong Kong this time. The second time in succession. The woodwork has rescued the team. और तारीफ करनी होगी एक बार फिर से चनोकान की. देखिए ये एक लो स्कोरिंग मैच चल रहा है. दूसरे क्वार्टर में 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे गोल थाईलैंड की तरफ से नंबर 11 करेंगे चनियोम फोंगस्टोन. पिछले क्वार्टर की समाप्ति पर भी उनका एक लेफ्ट हैंडेड शॉट रोका गया था, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी और चनियोम का ये पहला गोल और 5वां गोल थाईलैंड का. दूसरे क्वार्टर में 1 गोल की बढ़त से थाईलैंड विसल के साथ रिज्यूम हुआ है खेल. सेंटर ऑफ द पूल से आक्रमण यहां से शुरू करेगी हांगकांग चाइना की टीम. और मुश्किल की घड़ियां, चाहे फासला केवल 1 गोल का हो किशोर यहां पे, लेकिन जिस तरह से थाईलैंड ने एक रेजिलियंस दिखाया है, इस बात का एहसास हांगकांग चाइना और उनके हेड कोच किरिल रुस्तमोव को हो गया है कि इतना आसान नहीं होने वाला है. शानदार वर्क यहां पे डिफेंस का, लेकिन रिबाउंड उनके खिलाफ गया और यहां पे गिलमान का दूसरा गोल. ये रिबाउंड पे चनोकान से दूसरी चूक हुई है और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा गोलकीपर के साथ दोषारोपण करना ठीक भी नहीं है. ये शॉट आया था रिबाउंड के बाद, होल सेट में खड़े 1 मीटर डिस्टेंस में इस खिलाड़ी ने कलेक्शन की. हालांकि अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहरा किया गया यहाँ पे गिलमान की तरफ से भी तारीफ बनती है. 5-5 की बराबरी पर दूसरे क्वार्टर में एक बार फिर से थाईलैंड बनाम हांगकांग. 5-all. The game now restarts out there. Every time as we've spoken about how Thailand have gotten the lead, Hong Kong have equalized, come back on level terms. The fighting tooth and nail, not leaving an inch to anybody. Beautiful left-handed shot there from Thailand. It's Ekachona there, but Hong Kong's Inaz was well in position to clear that. Is on the right. Hong Kong are trying hard to at least take that lead there. They do not want to play catch-up. Playing catch-up on the scoreboard is always tough. There is always pressure when you're playing catch-up, and as in when the game goes on, it is very, very difficult to play catch-up, especially when you're chasing the scoreboard. Hong Kong are on the attack. They still have time. This is an opportunity for Hong Kong, and they don't fluff this. What a shot. Very quick on the counter. And Hong Kong have gone 6-5 up. It is Hei Chun Cheng who has scored here for Hong Kong. He's got 4 goals in the tournament so far. This is his goal number 5. All he had to do was beat the goalkeeper. There was Sutinan who was breathing down his neck, but Hei Chung had all the time to beat the goalkeeper and score the 6th goal for Hong Kong. एक टीम जिसने 4 मैच खेले हों सामने वाले के 5 के मुकाबले और उनका कुल योग सिर्फ 47 गोल हो, वहां पे 4 गोल करना टूर्नामेंट में और आज ये 5वां एक बड़ी उपलब्धि है. हांगकांग चाइना की ये लो स्कोरिंग स्क्वाड लेकिन कंसिस्टेंटली स्कोर करती रही है. भले ही जीत विजयश्री उनसे दूर रही हो. एक और विफल प्रयास यहाँ पे सफेद टोपी में थाईलैंड की तरफ से और लियांस लुई
जल्दी से आवाज देकर अपने साथी को सेंटर ऑफ द पूल में गेंद दिए। एक और लंबा पास लेफ्ट फ्लैंक पे, हालांकि खिलाड़ी मार्क था। विसल बजाकर वापस पोजीशन हांगकांग चाइना को मिलेगा। पीछे से टैकल, फिर वापस पोजीशन। ये इस तरह के छोटे छोटे फाउल होते रहते हैं। अगर बहुत थ्रेटनिंग फाउल हो तभी वहां पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है रेफरीज की तरफ से। कजाकिस्तान के आदिल और जापान के शुई फुकाया यहां पे रेफरीशिप कर रहे हैं इस अहम मुकाबले की। हांगकांग चाइना एक बार फिर से आक्रमण में, फिलहाल राइट फ्लैंक से फिर वापस सेंटर ऑफ द पूल में गेंद मिली है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्विम लगा के आगे बढ़े थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे थाईलैंड के डिफेंस की, खासतौर से चिनयोम जिन्होंने उस शॉट को ब्लॉक किया था और डिफ्लेक्ट करने में कामयाब भी रहे। बेहतरीन डिफेंस का मुजाहिरा थाईलैंड की तरफ से। एक गोल से हालांकि अभी पिछड़ रहे हैं क्योंकि छाईचोन चैंग का वो गोल उनको आगे ले गया था। जरानन रौनकृत बहुत ही शांत संयमित हेड कोच, अनलाइक दूसरे कोचेस की तरह। क्या यहां पे गोल, अच्छा रिसेप्शन, फायदा मिलेगा? नहीं, सीधा गोलकीपर लुई के हाथों में दे दिया। डिसेप्शन अच्छा था, पूरा हाथ घुमाकर ठीक गोल के सामने से राइट फ्लैंक की तरफ डॉज किया था, लेकिन उतने ही मुस्तैद इयन सिदोई यहां पर टाइम आउट लिया है। और इस तरह के रोमांच में, इस तरह की लगातार आक्रामक प्रहार में कई बार टाइम आउट आपके लिए एक अच्छा संकेत भी रहता है, एक अच्छा बदलाव लेकर आ सकता है। यहाँ पे थाईलैंड ने ये टाइम आउट लिया है और उनके कोच हांगकांग ने ये टाइम आउट लिया है, माफ कीजिए। और इसी बीच दोनों ही टीम्स अपने अपने हेड कोच के साथ मंत्रणा जरूर करेंगी कि किस तरह से यहां से इस दूसरे क्वार्टर में बचे हुए 2 मिनट में क्या रणनीति के चलते। थाईलैंड हालांकि एक गोल से पिछड़ रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ओवरऑल लुक डाली जाए इन दोनों टीम पे तो थाईलैंड काफी कंपोज लगा है। वो उनके 1-2 प्रयास जो लेफ्ट फ्लैंक से किए गए थे वो जो नलीफाई किए, एक क्रॉस बार पे लगा और दूसरा उनके गोलकीपर द्वारा लुई ने जो ब्लॉक किया था, उसकी वजह से ये स्कोर लाइन थोड़ा सा हांगकांग के पक्ष में है। अदरवाइज थाईलैंड एक बेहतर टीम नजर आई है। एक फ्री थ्रो सेंटर ऑफ द पूल से स्टार्ट करेंगे एक बार दोबारा से हांगकांग चाइना का ये आक्रमण। 6-5 in favor of Hong Kong China. Goalkeeper is out of the line. There is a skirmish between the defender and the attacker as well, but the goalkeeper makes sure he doesn't lose sight and his hands over the ball. A very quick counter from Thailand is what they've tried. They are not getting it out there. This is a long shot at goal, but the goalkeeper's hand saves the blushers there for Thailand. (6-5) favor of Hong Kong China as we speak. Hong Kong China on the attack, coming in from the left, on the right now. A lob and that's into the goal. Deception first, a lob and that goes into the goal. And look at Man Cheng, the captain there. Look at his reaction immediately after scoring that goal, after sending in that lob. Extremely happy. And he's put he's put Hong Kong 2 goals ahead now. कप्तान चैंग का ये दूसरा गोल है इस मुकाबले में और अब तक इससे पहले 7 गोल वो कर चुके हैं। तो बेहतरीन फॉर्म में है और तकनीक के लिहाज से भी आपने देखा क्या शानदार मुजाहिरा था। पहले डिसीव किया कि मानो एक तेज करारा प्रहार मारेंगे, उसके बाद लॉब भर कर दिया और चनकौन के लिए कोई अवसर नहीं। 2 गोल की बढ़त इस दूसरे क्वार्टर में। 50 सेकंड का खेल बचा है और एक बार फिर से आक्रमण में लेफ्ट फ्लैंक से अच्छा रन बनाया सेंटर ऑफ द पूल में। लेफ्ट फ्लैंक पे एक खिलाड़ी पहुंच गया है, मार्क नहीं है पूरी तरह से, हालांकि डिफेंडर ठीक उनके सामने है। अच्छा निर्णय, दोनों खिलाड़ी राइट फ्लैंक पे अनमार्क थे। स्पेस एंगल मिलेगा कि नहीं, वो गोलकीपर के बिल्कुल सामने है। चनकौन के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी यहाँ पे उसको ब्लॉक करना, लेकिन अभी भी पोजीशन 18 सेकंड के अंदर बचा हुआ है। कितना तेज रन ये लगाया है कि केवल 10 सेकंड में यहां गोल पोस्ट तक पहुंच गए थे। और एक और करारा लेफ्ट हैंडर राइट फ्लैंक से, लेकिन गोल बार से टकरा के गेंद बाहर और समय हुआ है टर्नओवर का। यहां पे आक्रमण में अब थाईलैंड, विसल बजी है।
विसल बजी है और टाइम आउट। इन अंतिम क्षणों में टाइम आउट लेना और गेंद को बाहर फेंकना, आक्रमण बनाने का प्रयास किया था थाईलैंड। जरानन रोनकृत क्या मंत्रणा करना चाहते हैं, कुछ चेंज किया है उन्होंने इस आखिरी सब्स्टिट्यूशन। एक और खिलाड़ी नंबर 6 वापस जा रहे हैं और उनकी जगह पे एक फ्रेश खिलाड़ी को पूल में उतारा है। इस बचे हुए 20 सेकंड में, इस अंतिम प्रयास में दूसरे क्वार्टर के थोड़ा पैनापन, थोड़ी तेजी संभवतः लेफ्ट फ्लैंक से वो ऐड ऑन करना चाहते थे। निर्णय बुरा नहीं हो सकता अगर ये कामयाब होता है तो। विसल के साथ ये दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। अटैक में समय कम बचा है, गेंद मिलेगी यहाँ पे। देखना होगा किस तरह से इस बदलाव का असर थाईलैंड के आक्रमण में मिलेगा। सेंटर ऑफ द पूल से आक्रमण का प्रयास शुरू करेंगे। राइट फ्लैंक पे गेंद दी है, मार्क नहीं है वो खिलाड़ी। दूसरे फ्लैंक में भी टोटली अनमार्क्ड है, लेकिन काफी दूर होने की वजह से वो दिशा संभवतः उन्हें ना मिले। लंबा एक लॉन्ग रेंज शॉट लेना पड़ेगा उनको। फिर रिसीव किया लेफ्ट पे, फिर वापस सेंटर में गेंद मिली है। एक लंबा शॉट आएगा या वहां से अनमार्क्ड खिलाड़ी था, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पूरा समय मिला वहां पे थाईलैंड को। 3-3 खिलाड़ी आपके लेफ्ट पूल और राइट फ्लैंक में खाली अनमार्क्ड पड़े थे। लॉब भर भी करते थे तो शायद यहां से संभावनाएं कुछ और होती। फिलहाल दूसरा क्वार्टर समाप्त हुआ है और अब ये फेवर में गया है पूरी तरह से हांगकांग के। 7 गोल हांगकांग के और 5 थाईलैंड के, जबकि पहला उन्होंने 3-2 पे जो समाप्त किया था उसके बाद केवल 2 गोल कर पाई है यहाँ पे थाईलैंड की टीम, और उसके मुकाबले 5 गोल दागे हैं उन्होंने। हांगकांग ने जिस तरह से वापसी की है इस दूसरे क्वार्टर में, मात्र 1 गोल से पिछड़ रहे थे और अब यहाँ पे 2 गोल से लीड कर रहे हैं दूसरे क्वार्टर की समाप्ति पर। 5 goals Hong Kong China have scored in the second quarter. It's been a very good productive quarter for them. 33% of shot efficiency, 31 for Thailand. That's, they're all, both of them are at the same stage here. And we also need to look at personal fouls there. 5 personal fouls by Hong Kong China, 4 by Thailand there. And the steals and the assists also, Thailand having a little more than Hong Kong China there. So up to the highlights there, and that's how the quarter had progressed. Started with Hong Kong trailing the scoreboard, trailing Thailand by 1 goal. But in the end, they made sure that they had a very productive quarter by scoring in 5 goals and only letting Thailand score 2 more goals. So at 7-5, the match hangs in balance, of course, but it is Hong Kong China who have a 2-goal lead. कप्तान मैनचेंग लाजवाब प्रदर्शन किया, उन्होंने 2 गोल किए हैं अभी तक के इस लो स्कोरिंग मैच के अंदर। 7-5 से हांगकांग लीड कर रहा है तो उसमें उनके 2 गोल्स का बेहद अहम योगदान है। एक भी पेनल्टी हांगकांग को मिली नहीं है, अगर वो मिलती तो जाहिर है वहाँ पे भी कप्तान ने उदाहरण के साथ उसका नेतृत्व करना था। पिछले 16 मिनट में जो कुछ घटा था इस हाइलाइट्स में वो नज़र तो आया है, लेकिन जो बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है हांगकांग चाइना के फेवर में, उसका स्कोर लाइन आपको तस्दीक करता है। क्योंकि जिस दबाव के साथ थाईलैंड ने लगातार गोल करके इस लो स्कोरिंग मैच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वहाँ से हांगकांग और ख़ास तौर से उनके हेड कोच किरिल रुस्तमोव के दिल में कुछ धड़कनें ज़रूर बढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर इन 2 गोल की लीड के साथ अब तीसरा क्वार्टर शुरू करेंगे तो परिस्थिति कुछ और होगी। ये है किरिल रुस्तमोव, अपने बोर्ड पे लगातार स्ट्रेटजी और उनकी रणनीतियों में अलग अलग समीकरणों की कल्पनाओं के साथ अपने वार्ड को, और ये है सफ़ेद टोपी में जरानन रोनकृत अपने सफ़ेद टोपी के स्क्वाड को ये बताते हुए कि केवल 2 गोल का ही अंतर है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक हेड कोच का फ़र्ज़ यही है कि अपने टीम का मोराल अप रखे,
ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप किसी भी परिस्थिति से वापस निकल सकते हैं। जहाँ तक हांगकांग चाइना की बात है, उनको इस लीड को बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहिए और किसी तरह की कॉम्प्लिसेंसी का कोई भी स्कोप उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उन्होंने बुनियाद अच्छी रखी है, अगर अपनी नींव पुख्ता रखी है, तो उसके ऊपर एक बुलंद इमारत बनाना उनका फ़र्ज़ है। और जिस तरह से उनका साथ उनके कप्तान ने 2 गोल करके दिया है, उन्हें यहाँ से किसी भी तरह की चूक करनी नहीं चाहिए। क्वालिफाइंग मैच है ये, पोडियम पर फिनिश नहीं कर पाएगी यहाँ से, क्योंकि कल दोनों ही टीमें क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले ईरान बनाम थाईलैंड और जापान बनाम हांगकांग चाइना परास्त की गई थी, जिसकी वजह से आज ये टेबल में जितना ऊपर फिनिश कर सके ताकि उन्हें क्वालिफाई करने में कोई समस्या ना हो, उसके लिए ये मैच खेला जा रहा है। और 28 सितंबर को जब इस 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ था, तभी से ही वाटर पोलो के मैचेस का सभी को इंतज़ार था, जिसकी शुरुआत हमने 4 अक्टूबर को की थी और आज ये उसका सेकेंड लास्ट डे है, क्योंकि कल फाइनल खेले जाएंगे और सेमीफाइनल के दोनों मुकाबले विमेंस में क्लियर हो चुके हैं, जिसमें जापान बनाम चाइना कल फाइनल खेला जाएगा। आज सेमीफाइनल मेंस के भी एक और मैच के बाद शुरू होंगे। फिलहाल ये क्वालिफायर मैच यहाँ पे रिज्यूम करेगा और क्वार्टर नंबर 3 कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगा। दोनों ही टीमें पूल के अंदर आ चुकी हैं अपने अपनी गोल लाइन में पोजीशन लेते हुए, और इस विसल के साथ इस तीसरे क्वार्टर का आगाज करेगी हांगकांग 7 पे, थाईलैंड 5। और एक बार फिर से थाईलैंड ने बाजी मारने की कोशिश की, लेकिन डिफ्लेक्शन पर पीछे से विसल फॉल होगा, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी था तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस बार दाएं से बाएं की तरफ ट्रॉफी में सफ़ेद टोपी में थाईलैंड की टीम अटैक कर रही है, लेकिन आक्रमण यहाँ पे हांगकांग का, क्या यहाँ पे कोई अवसर बना पाएगी या उस मोमेंटम को कैरी ऑन करेगी? एक लॉन्ग रेंज शॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, 3 डिफेंडर वहाँ पे इकलौते प्लेयर को दबोच लिया और एक फ्री थ्रो के साथ हांगकांग चाइना अनमार्क्ड प्लेयर को गेंद जरूर मिली है राइट फ्लैंक पे, एंगल उनके पास नहीं था तो वापस फ्लैंक पे पीछे दिया, अच्छा रिसेप्शन था वहाँ पे, ओल सेट में खड़े थे नंबर 4 चिंग फंग, 1 गोल कर चुके हैं। फंग को गेंद मिली थी लेकिन कोई समस्या यहाँ पे नहीं पेश आएगी चनोकॉन को उसे रोकने में, सीधा चनोकॉन को पाया उस थ्रो ने। Hong Kong have come all guns blazing is what we can see. Thailand need to replicate that same. There they do that, but here is Yeninaz Liu, who has stopped the ball from rolling into the goal, put his left hand out and has stopped the ball from rolling into the goal. That was a 6-meter shot try there. Hong Kong have had 2 tries. They haven't scored any. Thailand have got 1 out of 3. This should also be cleared out there. But when the foul happens, it is just outside that 1-meter mark. So exclusion will be a player, but Hong Kong, they try and put the ball in. Their bench is happy. It's 8-5 now. They've opened up a 3-goal lead there. There you see, excellent deception. He deceived the defender and the goalkeeper and went ahead and put the ball in. That is Check Hugh of Hong Kong China, who has scored his team's 8th goal here. It's 8-5 now. नंबर 3 चेक चोंग का ये दूसरा गोल है और अपनी टीम के कुल योग को 8 पर पहुंचाया है। हांगकांग चाइना अब यहां से जिस गति से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप में एक एक गोल करके उस बढ़त को 3 गोल की बढ़त कर लिया। अब यहाँ पे थाईलैंड का आक्रमण, लॉन्ग रेंज शॉट था, काफी दूर से 6 मीटर शॉट से भी बाहर था, वो 6 मीटर से भी ज्यादा दूरी थी और कोई समस्या यहाँ पे इयंस के लिए पेश नहीं आएगी। एक बार फिर से अटैक सेकेंड हाफ में नीली टोपी वाले लेफ्ट टू राइट अटैक कर रहे हैं हांगकांग चाइना नीली टोपी में, और इस गोल के बाद मनोबल और आकाश चुंबी है उनका। लॉन्ग रेंज शॉट भी ले सकते हैं, रिबाउंड करवाना चाहते थे, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला लेकिन ओह चूक हो सकती थी, कमिट कर गए थे गोलकीपर चुनानॉन वहां पे, और जिसकी वजह से पेनल्टी दी गई है।
मुश्किल की घड़ियां थाईलैंड के लिए। गोल खाया है और अब पेनल्टी और लेने आ रहे हैं हांगकांग के नंबर 10 के गिलमान। गिलमान 2 गोल कर चुके हैं अब तक। क्या ये उनका तीसरा गोल होगा? पहले भी पेनल्टी कन्वर्ट की थी गिलमान ने। पूरी ताकत से पानी के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रेड लगाकर पूरा लॉन्च किया अपने आप को हवा में और टॉर्च को ट्विस्ट करके गिलमान ने इस पेनल्टी को कन्वर्ट किया है और अपनी टीम हांगकांग चाइना को दिया है गोल नंबर 11। इस तीसरे क्वार्टर की पहली पेनल्टी गई है हांगकांग के नाम। 4-goal lead for Hong Kong. They are going ahead and taking a firm grip on this contest here in the second quarter. Sorry, in the third quarter. As we've rightly said, this time it is Thailand. They draw 1 goal back. And it is number 5 of Thailand. It is Sangathanapanich who has scored here. There you see that left-handed shot bounces it right near the defender so that the defender cannot take it and hits the ball right into goal. It was Hong Kong's Chek Hee who was right there near him and he was not able to stop that. कितनी ताकत होगी उस शॉट में। लेफ्ट हैंडेड डिफेंडर को देखा, छकाया और रिबाउंड के बाद भी गति इतनी कि इयंस के लिए कोई अवसर नहीं वहां पर। बेहतरीन मुजाहिरा वहां पे थाईलैंड के खिलाड़ी का। That's a foul. It's a foul, a rough tackle there. A rough tackle on Heyman. Hong Kong get the possession. They're right on the goal mouth there, but the centre forward player was not exactly in position to take that. And it is cleared by the Thailand goalkeeper, Chanok Nan. A very quick counter is what Thailand are looking at. But they also are guilty of, are the receiving end now of rough tackle. The retained position. Ball goes on to the right and this could be a goal. Is this a goal? The ball hit the goalkeeper, but then I think it bounced off the bar and fell into safety. There was nobody to take the rebound as well. Hong Kong on the right. The captain, Heyman. But it's lost in the defense. अच्छा डिफेंस यहाँ पे थाईलैंड का। जिस तरह से जमावड़ा था वहाँ पे हांगकांग के अटैकर्स का, काफ़ी मुश्किलें हो सकती थी उनके गोलकीपर के लिए, लेकिन थाईलैंड के लिए उनका डिफेंस लाइन पूरी तरह से मुस्तैद था। 3 गोल से पिछड़ रहा है 6-9 से थाईलैंड इस मुकाबले में। अब एक बार फिर से आक्रमण में पीछे लंच करते हुए एक अच्छा पास दिया। एक बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है वाटर पोलो। टाइम आउट का समय हुआ है संभवतः यहाँ इस तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही। बॉल्स को वापस मांग लिया गया है। पेनलाइज दरअसल। नाखुश लग रहे हैं यहाँ पे किरिल और उनके असिस्टेंट कोच। टाइम आउट लिया है यहाँ पे हांगकांग चाइना की टीम ने संभवतः। एक लंबी चर्चा हेड कोच किरिल और रेफरीज के बीच में, जिन्होंने वीडियो रेफरल का डिमांड किया है। जब भी इस हरे चावल को पानी में फेंका जाता है यानी कि उस डिसीजन से नाखुश हैं और आपको एक वीडियो रेफरल की दरकार है। किरिल वीडियो रेफरल की डिमांड करते हैं कि ये निर्णय से वो खुश नहीं लग रहे हैं। 2 रेफरीज यहाँ पे फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जापानी रेफरी शुई फुकाया और पूल के दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं आदिल अमितोव, जो कि कजाकिस्तान से आते हैं, जो अब आप टीवी पर देख रहे हैं। अभी देखिए कितने आवेश में किरिल यहाँ पे रेफरी को अपने नाखुशी और अपने दुख का इजहार करते हुए
रेफरल अभी भी जारी है। देखते हैं क्या निर्णय होता है यहाँ पे। क्या किरिल का वीडियो रेफरल कामयाब होगा? और ये है जरानंद रौनकृत, काफ़ी शांत, बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग स्वभाव है इनका अगर हम किरिल के साथ उनकी तुलना करें। रिज्यूम करेगी गेंद यहाँ से, सेंटर ऑफ द पूल से थ्रो मिला है हांगकांग चाइना को। संभवतः किरिल का वीडियो रेफरल शायद उनके फेवर में चला गया हो क्योंकि पोजेशन दिया जा रहा है। अभी भी चर्चा टेक्निकल टेबल ऑफिशियल्स के साथ लगातार चल रही है। शुई फुकाया, long discussion there between the technical officials, the referees and everybody. The coach is absolutely livid there, Kirill Rustamov. He's going back and checking the monitor once again, having a word with the VAR official. Akbar Sadikov of Uzbekistan is a VAR official. Shuei Fukaya of Japan is the referee there. He's having a clear look at the screen. They've got technology at their disposal. Different angles, slow motions. They can zoom in and zoom out as well, just to get the exact point. And the technical officials have also apprised him of the decision here. And the game continues out there. पोजीशन हालांकि हांगकांग चाइना को दिया गया और यहां से आक्रमण सेंटर ऑफ द पूल से शुरू करेंगे। एकदम से थाईलैंड के अटैकर्स मार कर लिया था गेंद को। पोजीशन वापस हांगकांग चाइना की तरफ, लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण बनाने का प्रयास कर रही है टीम। 9-6 से आगे है और पोजीशन गंवाएगा यहाँ पे चोनाकॉन। उनके गोलकीपर एक लंबी थ्रो के साथ स्कैटर्ड पूल में एक अनमार्क्ड खिलाड़ी को गेंद जरूर मिला था लेफ्ट फ्लैंक पे। सेंटर ऑफ द पूल में 6 मीटर दूरी पे किस तरह से उसको भुनाएंगे, आगे फ्लैंक पे बढ़ा के नजदीक की खिलाड़ी को दिया, अच्छा डिसेप्शन वहां पे, फिर वापस सेंटर ऑफ द पूल में। देखिए ओ शानदार, मैं ये बात कहने ही लगा था कि शायद सुतेमान पानी के अंदर जितना गहरे हैं इतना लॉन्ग रेंज शॉट लेना सुतेमान के लिए शायद संभव ना हो, लेकिन आप ताकत देखिए यहाँ पे इस 2 नंबर के खिलाड़ी की। सुतिनान कौनीन का ये तीसरा गोल है और डेफिसिट को कम किया। कोई अवसर नहीं यहाँ पे यूएन लुई के लिए। बेहतरीन गोल, सीधा लाइन में 2 डिफेंडर और 1 गोलकीपर को चकाकर, और ये जरानंद रौनकृत यहाँ पे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, बहुत ही संयम, सौम्य और शांत हेड कोच। कंपैरिजन अगर इनका किरिल के साथ करते हैं तो गोल की ना खुशी ना गम, किसी भी तरह का कोई असर उनके चेहरे पे नजर नहीं आया। फिलहाल यहाँ पे 1 गोल का डेफिसिट थोड़ा कम हुआ है। 6 पर काफी देर से अटकी हुई थी थाईलैंड की टीम। अब इस सुतिनान के लॉन्ग रेंज शॉट ने 6 मीटर डिस्टेंस से जो सधा हुआ गोल किया है और आगे बढ़ गया। फिलहाल आक्रमण में हांगकांग चाइना की टीम। लेफ्ट हैंडेड थ्रो, अच्छा ब्लॉक, वहां पे बेहतरीन काम किया है चोनाकॉन कौनीन ने, और किस अंदाज में ब्लॉक किया है। रिप्ले में देखेंगे कितना आकर्षक वो ब्लॉक था चोनाकॉन का। नंबर 13 का ये गोलकीपर थाईलैंड के लिए मुस्तैदी से अपना काम करते हुए। सेंटर ऑफ द पूल में अभी भी पोजीशन थाईलैंड के पास है। क्या एक और गोल कर पाएगी यहाँ पे? सुतिनन ने तो अपना काम कर दिया है। अब एक बार फिर से फाउल लगा है, फाउल हुआ है जिसकी वजह से एक फ्री थ्रो मिला है। राइट फ्लैंक से प्रयास कर रहे, अच्छा अवसर था, डिफेंडर के सामने रिबाउंड करके फायदा लेना चाहते थे। सुतिनान एक बार फिर से लाइन ऑफ फायर में थे वहां पे।
पोजीशन अभी भी थाईलैंड के पास। लॉन्ग रेंज शॉट की जरूरत नहीं है, समीकरण करें, थोड़े से स्पेस आउट करें, उन गैप्स की तलाश करें जहां से गेंद गोल के पार जा सके। समय बीत रहा है, केवल 6 सेकंड बचे हैं। एक लंबा थ्रो आना चाहिए। ओ, रिसेप्शन होता तो ये निश्चित गोल था। संगता पनेच ठीक उस होल सेट एरिया में थे, 1 मीटर बॉक्स में। It was a personal foul there that has happened, and they will get a penalty there. That's the third penalty foul for Hong Kong. Only one foul Thailand have made. So Thailand's opportunity to score. They bounce the ball and he scores. The deficit is still reduced. There you see that coach there. It is Eka Chona who has scored here. Thailand 8, Hong Kong China 9. There you see, bounces the ball, and there was absolutely no chance for Yen Inas Liu to stop that ball from rocketing into the goal. Thailand coach, there is very happy there, Ronak Krit. Pumps his fist, shows his arms as well. देखिए, अगर हम बात करें गोल्स की, केवल एक गोल का फर्क रह गया यहाँ पे, और ये जो गोल अभी आया है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये एकाचौना का पहला गोल है आज के मुकाबले। और हांगकांग चाइना के लिए जो अब तक 9 गोल आए हैं उनमें से 3 गोल गिलमान के, 2 गोल चोंग के, 2 गोल कप्तान के। तो जो 2-3 खिलाड़ी हैं वो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे बनस्पत इसके सुतिनान ने 3 गोल किए, लेकिन उसके बाद एक गोल सुगा पंची का, और अब यहाँ पे पोंगसान चाय और एक चाओ ने जो एक गोल किया है, उससे ओवरऑल टीम का जो तालमेल है वो बेहतर नजर आ रहा है। और जब आप एक वेल कोऑर्डिनेट यूनिट के तौर पे काम करते हैं तो आप विरोधी पर ज्यादा प्रभाव डालने में कामयाब हो जाते हैं। और यही कारण है कि अब तक के इस मुकाबले में हांगकांग चाहे गोल से पिछड़ रहा हो, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी है। केवल एक गोल का फर्क रह गया है थाईलैंड के बीच में, और संभवतः यहां से हांगकांग को अपनी सॉक्स अप करनी पड़ेगी। हांगकांग के पास पोजीशन है और बढ़िया डिफेंस यहां पे, बेहतरीन काम किया है चनोकाम ने। इस गोलकीपर ने जिस तरह से गोल की रक्षा की है, आप इन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। On the attack there, Thailand, and they also miss. We've seen the Hong Kong women's team, the Thailand women's team, the team officials, everybody in the galleries, and every time the ball goes to their end, there is a lot of noise from these fans. There's a lot of noise from the galleries as well. Everybody are backing their teams to the hilt there. On the right here, the ball gets on. Do they get a chance at goal? They don't. There's time is up for building that attack there. That's the referee's signal out there. 9 to Hong Kong, 8 to Thailand. Hong Kong would need one more. It is coming on the right here. On the right, the woodwork this time comes on. It is Hin Zhang there from the right, and a very quick counter there done by Thailand as well, and that ball also goes out. The quick counter was because time was just running out in this third quarter there. Got 9 goals for Hong Kong, 8 for Thailand, and just as the player picks up the ball, the hooter goes off. So the end of 3 quarters here, we have Thailand on 8, Hong Kong on 9. And we'll have a 2-minute break before the 4th quarter begins. That's the end of quarter 3. Thailand 8, Hong Kong 9. Thailand have led in the first quarter by 1 goal, and then they trailed and by 2 goals at the end of the second quarter. Now they trail by 1 goal at the end of the third quarter. And overall, it has been a game that we've had match to match here. Shot efficiency there you see, 32% for both the teams. 6-meter shots, 4 chances for Thailand. They've put 2 in goal. 2 chances for Hong Kong China. They've not been successful with their 6-meter goals. But look at the number of personal fouls done. Thailand have made 10 fouls. Hong Kong China 8. 5 steals for Hong Kong.
2 blocks for Thailand. But in the end, that's how the third quarter progressed. जो 5 स्टील्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो भी एक काफ़ी बड़ा इंडिकेटर है इस बात का कि किस तरह से थाईलैंड ने हांगकांग के कारवां को रोके रखा है। फिलहाल भले ही 1 गोल से पिछड़ रही हो, लेकिन जब ओपनिंग क्वार्टर में 1 गोल से आगे चल रही थी और जब हांगकांग ने वापसी की और 2 गोल से परास्त किया, तो लगातार वो जो कैचिंग अप गेम रहा थाईलैंड के लिए, वो थोड़ा सा मुश्किल की घड़ियां बढ़ाता रहा। लेकिन अब इन 2 गोल्स के बाद तीसरे क्वार्टर में जिस तरह से 2 गोल अर्जित किए हांगकांग ने, यहां से किस तरह का रुख लेगी ये नीली टोपी की टुकड़ी, ये देखना रोचक रहेगा। निर्णायक अंतिम क्वार्टर यहां पे कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है और हांगकांग चाइना इस विनिंग मोमेंटम को जारी रखना चाहेगा। चौथा क्वार्टर शुरू होगा, थाईलैंड है 8 गोल पर, हांगकांग उनसे मार्जिनली आगे, 1 गोल से आगे 9 गोल पे। यहां से थाईलैंड ने लास्ट में जब अंतिम क्षणों में 3 सेकंड बचे थे, एक लॉन्ग रेंज शॉट सेंटर ऑफ द पूल से लिया था और उसमें जो ताकत थी, भले ही उसे इयन लुई ने डिफ्लेक्ट कर दिया था, लेकिन उनके इरादे साफ जाहिर हो गए थे। चौथा और निर्णायक क्वार्टर इस पहले मेंस मुकाबले का आज के दिन का क्वालिफायर है। ये थाईलैंड बनाम हांगकांग, और हांगकांग ने इस स्प्रिंट को जीतकर अपने नाम किया है। लॉब भर से राइट फ्लैंक पे गेंद को दिया, पूरी तरह से अनमार्क था खिलाड़ी। ऐसा अनयूजुअल होता है, ये एक त्रुटि कहलाएगी, एक फॉल्ट थाईलैंड के बिहाफ पे कि जिस तरह से उन्होंने स्प्रिंट के दौरान उनके अटैकर्स को, विरोधी के अटैकर्स को अनमार्क छोड़ दिया। हालांकि कवर अप किया है राइट फ्लैंक पे अभी। ओ, होल साइड की तरफ गेंद भेजी है, भाग्यशाली रहे कि फ्री थ्रो मिला केवल। एक फाउल जरूर किया था थाईलैंड की तरफ से। आक्रमण चारों तरफ से घेर के पूरी डिफेंस लाइन थाईलैंड की मौजूद है। लॉन्ग रेंज शॉट से शायद बात बन सकती है और अच्छा असिस्ट वहां पे 11 नंबर के खिलाड़ी ने दिया 4 को, और चिंग ने कोई गलती नहीं की है। नंबर 4 शानदार असिस्ट 11 नंबर के जैंग की तरफ से भी तारीफ बनती है राइट फ्लैंक की, लेकिन ठीक गोल के सामने खड़े चिंग फोंग ने ये दूसरा गोल करके अपनी टीम का कुल योग किया है 10, और हवा में हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए यहां पे जोंग। Kong Cheng puts Hong Kong 2 goals ahead. 11 personal fouls by Thailand, 8 by Hong Kong. Just before that goal was scored, we also saw a Thailand and a Hong Kong player getting into a tussle here on the straight there. Centre forward being summoned here, and that's a goal there. Thailand have drawn one back. There he raises his finger and shows that yes, I've done this for my team. So it's 9-10 now. It is Thanakom Komkai who has scored. There you see on that replay, the ball lands on him. What a shot, a no-look shot there from Tom Kai. A backhand shot, and the goalkeeper and the defender absolutely caught unawares. The defender did not expect that. He had to take evasive action because of the splash of the water as well. But the goalkeeper, Ines Liu, was absolutely caught unawares there. 9-10. किशोर, जो खींचातानी का रस्सी कसी का खेल यहाँ पे चल रहा है, तीनों क्वार्टर में ही कभी भी फासला दोनों टीम्स के बीच में 1 या 2 गोल से ज्यादा नहीं हुआ है। और आते ही इस क्वार्टर में जब गोल किया था, 10वां गोल यहाँ पे, तो सीधा उसकी भरपाई करते हुए यहाँ पे 1 गोल और कर दिया है। और अब यहाँ पे हांगकांग का रिस्पॉन्स, निराशा होगी चनाकॉन को और किरिल होंगे खुश। नंबर 11 ये गोल नंबर है उनका पहला। हिन जांग, जिन्होंने अब तक 3 गोल किए हैं इस टूर्नामेंट में, और एक सॉफ्ट लगने वाला शॉट लेकिन सदा हुआ राइट फ्लैंक से बाएं हाथ की तरफ से, बढ़िया एग्जीक्यूशन, और एक बार फिर से गोल्स का फासला हो गया है 2 गोल्स का। 11 हांगकांग, 9 थाईलैंड। सेंटर ऑफ द पूल में थाईलैंड अब आक्रमण बनाने का प्रयास कर रहा है, उनकी तरफ बढ़ के जरूर आई है रक्षा पंक्ति हांगकांग की, पूरी तरह से दबोच रही है, लेकिन रेफरी का विसल कि ये फाउल है और पोजीशन अभी भी थाईलैंड के साथ रहेगा। जैसा हमने पीछे 3 क्वार्टर्स में देखा है, गोल आफ्टर गोल यहां पे दोनों ही टीम्स रिस्पॉन्स करती रही हैं। क्या यहां पे थाईलैंड भी गोल कर पाएगा? एक और फाउल यहां पे,
दोनों रेफरीज दोनों तरफ से पूरी नजर बनाए रखे हुए थे और एक और गोल यहां पे, और करने वाले कोई और नहीं, सुतिनान, जिनका ये गोल नंबर 4 है इस मुकाबले का। अकेले कमान संभाले हुए हैं पिछले काफी समय से। जब जब थाईलैंड को जरूरत पड़ती है सदा हुआ शॉट लेकर निशाने पर लगाते हैं और चौथा गोल करके कुल योग पहुंचाया है यहां पे थाईलैंड का अब 10। Thailand bench are very happy. Number of personal fouls have been increasing here. 21 fouls, personal fouls made by both the teams combined. 11 for Thailand, 10 to Hong Kong. Seen this game grow aggressive in nature, and that's the reason why a lot of personal fouls that we've seen. The thin line between aggression and playing a foul. You always have to keep respecting your opponent as well. Some of the fouls have resulted in penalties as well, which have been scored, which have been missed. But right now it is Thailand who will start the attack from the right. Comes to the goalkeeper. They want a very quick counter before the defense can take shape. Centre back there on the left wing. Now to the right, and it's a goal! Splendid team effort there from Thailand, and Ronakrit Jaranon is very happy because Wuttikorn has scored the 11th goal, and more importantly, Thailand are back on equal terms here. There you see on that replay. Beautiful teamwork. He got the ball, a lob from the other flank, and number 11 there has scored. What a goal for Thailand. शानदार एग्जीक्यूशन। जब जब हम इस होल सेट की बात करते हैं, ये पूरा खेल इतना डिमांडिंग है किशोर कि आपको एक ऑलराउंड स्विमर ही नहीं बल्कि एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर भी होना चाहिए, एक अच्छा रग्बी प्लेयर भी होना चाहिए, एक अच्छा सॉकर प्लेयर भी होना चाहिए। जो आपका गोल सेंस है, खासतौर से जब आप बैकहैंड या ओवरहेड शॉट ले रहे होते हैं, जिस तरह से पानी के अंदर से निकल के छलांग लगाई थी और इस 11वें गोल से बराबरी करवाई है थाईलैंड के लिए, ये गोल बेहद अहम है। और अब यहाँ पे जरानन रोनकरित थोड़े से शांत जरूर हो गए हैं। हालांकि ये बहुत ही संयमित और सौम्य हेड कोच है किरिल के मुकाबले। ये गोलकीपर चनाकॉन की भी लगातार परीक्षा हुई है और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है अंडर द बार, काबिले तारीफ है। अंडर प्रेशर ये गेम खेल रहे हैं और दोनों ही गोलकीपर्स पर काफी दबाव है, लेकिन हांगकांग चाइना ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हें चनाकॉन ने बचाया है। एक बार फिर से आक्रमण में थाईलैंड को एक और अवसर, संभवतः ये नंबर 9, और अब बहुत देर बाद लीड में आया है यहां पे थाईलैंड और गोल करने वाले हैं वोचरावोरोंग, जिन्होंने एक गोल पहले भी किया है। इस टूर्नामेंट में 2 गोल अब तक आए हैं और 2 इस गेम के अंदर, कुल योग 4, और अब पहली बार चौथे क्वार्टर में 12 गोल पर पहुंच गए, 1 गोल से लीड कर रहा है। पहला क्वार्टर 1 गोल से लीड किया था 3-2 से, और 2 गोल में पिछड़ने के बाद, 2 क्वार्टर से पिछड़ने के बाद अब इस चौथे क्वार्टर में आधा समय रह गया है, लगभग 4.5 मिनट का खेल बचा है। अब थाईलैंड लीड कर रहा है। क्या यहां से इस मोमेंटम को कैरी ऑन कर पाएगा थाईलैंड? बेहद जरूरी है। और अब आक्रमण ने काउंटर अटैक बनाया है थाईलैंड। लेफ्ट फ्लैंक से एक लॉब देगा या राइट फ्लैंक पर जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्विम की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड की। टाइम आउट लिया गया है। यहां पे आक्रमण बनाया था और टाइम आउट लिया है। संभवतः ये किरिल ने टाइम आउट लिया। एक अच्छा आक्रमण बना था और थाईलैंड के उस मोमेंटम को तोड़ने का प्रयास है साफ तौर पे। ये जाहिर है किरिल की स्ट्रैटेजी, क्योंकि 11-11 की बराबरी पर जब ये गोल एक्स्ट्रा लेकर आए थाईलैंड और लीड करने लगे और समय बीतता जा रहा है, तो उनको इसका एहसास है कि टाइम आउट लेकर उस मोमेंटम को तोड़ना भी लाजमी है। A lot of instructions being given there. That is Kirill, and look at Thailand's coach there. They've taken the time out there, and it is Ronakrit Jaranon has taken the time out, and he is instructing a lot of his players to go ahead and execute their plans to the hilt. Meanwhile, for Hong Kong, the captain Heyman has been excluded from the game. He's made 3 personal fouls.
So which means he cannot take further part in the game. It's exclusion with substitution there. So the Hong Kong captain, Heyman, will not play any further part in the game. Meanwhile, Thailand here, they are looking strong and they score! After being behind, Thailand have scored in quick succession. They are now 2 goals ahead here. 13-11, Eka Chona, who has scored here. What a shot it was. There you see from the right, dodges the defender and the goalkeeper there. 2 defenders were there. And even before Chek Hey can come and stop him, he has shot that ball straight into goal. Thailand 13, Hong Kong 11. Look at the reaction from the bench. 4 मिनट से कम का समय बचा है, 3 मिनट 57 सेकंड, और ये गोल भी एक चौंक की तरफ से आया था। लगातार दूसरा गोल है उनका और कुल 3 गोल उन्होंने किए हैं अभी तक। और पेनल्टी का समय यहां पर हांगकांग के लिए एक जीवन दान कह लीजिए। यहां पे इस स्टेज पर पेनल्टी मिलना चनाकॉन की परीक्षा होगी थाईलैंड के लिए। और पेनल्टी लेने गए हैं नंबर 10 के खिलाड़ी हांगकांग के लिए, गिलमान, जिन्होंने अब तक 3 गोल किए हैं। गिलमान चूकते नहीं है और चूकेंगे भी नहीं। ये पेनल्टी हांगकांग के नाम और गिलमान के नाम। और अब गोल हो गए हैं 12। अभी भी 1 गोल का कुशन जरूर है यहां पे। रिप्ले में नजर डालिए किस तरह से गिलमान ने इस पेनल्टी को अंजाम दिया। आगे बटरफ्लाई पोजीशन में लंच किए थे चौनकान। कोशिश ऐसा लग रहा था अपने विंग स्पैन को पूरा वाइड स्प्रेड करके दोनों ही तरफ से गोल को कवर करे, लेकिन लंजिंग में जो ट्रेजेक्टरी था उस गोल का वो पूरी तरह से मिस कर गए चौनकान। एक अच्छा एग्जीक्यूशन, तारीफ करनी होगी गिलमान की भी। Thailand here, what will they do? They will want to go ahead and take that lead there, restore the 2-goal lead. There's a shot that is way off target. The shot out of desperation there. The players get to their positions on the Hong Kong side very, very quickly. And this is Hong Kong's Chek Hui with the ball. Does well to hold the ball there on the right. The centre back now misses the ball when trying to dodge there. That was Jason here. And immediately possession given to Thailand because it's a foul. It's a very quick counter here for Thailand. They are swimming on the right here. Will it be a goal? Yeah, almost it is. But he loses track there. Loses possession right at that moment. And it's a penalty there because of that foul. A second personal foul there by Shun. And it is a penalty for Thailand. They have a chance to take that door to 2 goals. They take that lead to 2 goals. Ronakrith is happy. There, the Thailand's women team in the crowd are happy. And it is Chaniyam who has scored, the 22-year-old. He doesn't miss many here. There you see that shot threading into the goal. तो लीड अब यहाँ पे वापस से 2 गोल पर आ गई है। फोंग सोथान का शानदार एग्जीक्यूशन। यहाँ पे पेनल्टी मिलना लाजमी था क्योंकि जिस तरह से वो रन बनाया था और एक स्ट्रॉन्ग फाउल उनके पास 1 मीटर डिस्टेंस में होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यहाँ पे 2 गोल के डेफिसिट को वापस क्रिएट कर देना थाईलैंड के लिए। 2 मिनट 50 सेकंड का खेल बचा है। आक्रमण में हांगकांग है। बचाव अगर करती है इस आक्रमण को, जी हाँ, बेहतरीन बचाव यहाँ पे चौनकॉन का। कवनी चौनकॉन थाईलैंड के लिए नंबर 13 का ये गोलकीपर, बेमिसाल काम किया है इस युवा खिलाड़ी ने। और अब यहाँ पे थाईलैंड आक्रमण में बेतहाशा सी लगती है हांगकांग का डिफेंस। क्या इस थाईलैंड के अटैक को रोक पाएगा? जी हां, इस आक्रमण को तो रोका है। गोलकीपर्स दोनों ही बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वो यू इयांस लू हो या फिर चौनकॉन, दोनों ही गोलकीपर्स बेहतरीन हैं। एक और टाइम आउट
इस अंतिम क्वार्टर में, इस निर्णायक क्वार्टर में 2 मिनट 25 सेकंड का समय बचा है और दोनों ही टीम्स समय समय पर टाइम आउट लेके, ये टाइम आउट हांगकांग चाइना की तरफ से लिया गया है और 2 गोल से पिछड़ रही है किरिल की ये टीम। किरिल रुस्तमोव, क्या कुछ इन बचे 2.5 मिनट के अंदर हांगकांग चाइना करेगा? पहले तो उन्हें बराबरी करनी होगी उन गोल्स की, और थाईलैंड भी इस दौरान चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ पे थाईलैंड ने, खासतौर से उनके नए गोल स्कोरर्स फोंगसाथॉन और वॉचवोरोंग ने जिस तरह से फॉर्म को हासिल किया है इन डाइंग सेकंड्स में, किशोर, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। Sutinan has got 4 goals for Thailand. Ekachona 3 goals. So they are the ones to be marked. On the other hand, Hong Kong here, Choi has got 4 goals against his name for Hong Kong. Chasing the scoreboard, chasing Thailand here are Hong Kong. They've got 2 minutes 20 seconds to overturn a 2-goal deficit. All while not letting Thailand score, not letting Thailand get possession. But as we speak, it is Thailand who have possession. Look at the pace at which the Hong Kong players have swam. Good shot there from Thailand's Mani John, but Yaninas was straight in position to block that attempt. There's Hong Kong on the right. They get to the right winger here. Very narrow angle is what he's targeting. Does he target? Is that a penalty? Is that a foul? We have to see. And yes, a foul has happened. It is a penalty there. A foul happens in that 1 meter area. Is a penalty. It is a lifeline now for Hong Kong to roll one back. Ekachona, meanwhile, has been excluded. It's a 3rd personal foul. He's been substituted there for Thailand. Hong Kong, will they score? Waiting for the whistle. The whistle comes. Goal number 13 for Hong Kong. And the Hong Kong bench are also happy with that. It is Shan who has scored here for Hong Kong. There you see, targeted that leftmost corner of the goal and he's done it. शन ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के विरुद्ध 3 गोल किए थे और इस पेनल्टी का मिलना एक बड़ा जीवनदान है हांगकांग के लिए। अगर इस मैच में वापसी करनी है, डेफिसिट अब 2 से घटकर केवल 1 गोल रह गया है। आक्रमण में थाईलैंड यहाँ पे अगर 1 और गोल कर लेती है थाईलैंड, तो वापस उस मकाम पर आ जाएगी जहां पर वो थोड़ा सा सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि वो जो चूक उन्होंने अपने हाफ में की थी, जिसकी वजह से उन्हें पेनल्टी दी गई, वो एक बहुत बड़ी गलती थी वहां पे। अच्छा डिफेंस वहां पे हांगकांग का। अब काउंटर अटैक बनाएगा। फिलहाल लॉब किया है सेंटर ऑफ द पूल में, गेंद को लेके खुद स्विम कर रहे हैं नंबर 3 यहाँ पे चुक चैंग। लॉब आया राइट फ्लैंक पे, थोड़ा सा पीछे था, कवर अप करेंगे इतनी देर में, रक्षा पंक्ति पूरी आ जाएगी वहां पे। क्या एक और पेनल्टी मिलेगी यहाँ पर? भाग्यशाली रहे कि पेनल्टी नहीं मिली और थाईलैंड के लिए खुशी की बात, क्योंकि जब जब गेंद इस 1 मीटर जोन, इस होल सेट में आती है और वहां फाउल हो, ओ यहां पे संभवतः 1 गोल हो सकता था। निराशा, केरल खुश नहीं है। केरल को लगता है कि ये फाउल होना चाहिए। येलो कार्ड दिखाया है उन्होंने केरल को कि बार बार इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। शुई फुकाया ने येलो कार्ड निकालकर चेतावनी दी है। अभी भी आक्रमण थाईलैंड का बना हुआ है। पूल पूरा स्कैटर्ड है, 3-3 खिलाड़ी मार्क है तो 2 खिलाड़ी पूरी तरह से अनमार्क्ड है। सेंटर ऑफ द पूल में अनमार्क्ड खिलाड़ी को लॉन्ग रेंज शॉट मिला था 6 मीटर डिस्टेंस से। नंबर 2 संभवतः सुतिमान होंगे। ये रिप्ले में नजर डालेंगे अगर सुतिमान एक कमाल के स्ट्राइकर। जी हां, नंबर 2, 5वां गोल है ये और वापस लीड हो गई है 2 की और कुल योग यहां पे थाईलैंड का 15। Absolutely ecstatic Thailand bench there. There you see Sutinan there. Beautiful goal. One defender, one striker and caught the goalkeeper on the wrong foot. That's the beautiful angle that we've seen from the center there. Scores. Look at the reaction from the coach and from the bench.
38 seconds remaining in this contest. Thailand are 2 goals ahead. They were in the lead in the first quarter. They lost the lead in the second and the third. And now in the fourth, they are 2 goals ahead. Hong Kong desperately trying to reduce the deficit here. They have to do something very quickly. They do it. Albeit only 1 goal there. Deficit is now 1 goal. It is Shan who has scored. शान चेंग का ये पहला गोल है और बेहद अहम गोल जिस पड़ाव पर आया है। केवल 20 सेकंड बचे हैं 1 गोल करके। कल क्वार्टर फाइनल में 3 गोल किए थे, आज ये पहला गोल, लेकिन सबसे अहम गोल। हालांकि अभी भी डेफिसिट यहाँ पे 1 गोल का है। क्या ये एक टग ऑफ द वॉर खत्म होगी? 20 सेकंड बचे हैं। पोजेशन यहाँ पे थाईलैंड पूरी तरह से समय खर्च रहा है। 10 seconds remaining on the clock. Thailand 1 goal ahead. That is all it will be. They get to the corner. They get the ball back. Possession is still with Thailand. They will go ahead and try for goal number 16, but it is not to be. But in the end, it is Thailand who have triumphed in this classification match by 15 goals to 14. एक बेहतरीन मैच जैसी आप अपेक्षा रखते हैं इतने श्रेष्ठतम प्रतियोगिता में, चाहे विनर थाईलैंड हुआ या हांगकांग होता, लेकिन जिस तरह के उच्च कोटि खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया है किशोर, ना सिर्फ दर्शकों को बल्कि हम कमेंटेटर्स को भी जिस तरह से रोमांचित किया है, हम भी कमेंट्री बॉक्स में अपने पैरों पर खड़े होने पर मजबूर हो गए। और ये थाईलैंड की फीमेल टीम यहाँ पे जाहिर है उन्होंने भी इसका पूरा लुत्फ उठाया और थाईलैंड के नारे लगाकर उनका मनोबल बढ़ाया है। और यहाँ पे जरानंद रौनकेत अपने वार्ड्स को गले लगाकर और आशीर्वाद देते हुए लगभग वहां पे उनके साथ खुशी मना रहे हैं। लेकिन दोनों ही टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है। हांगकांग ने अंतिम क्षणों तक वहां पे गोल करने का प्रयास किया, जबकि उनका जो आखिरी गोल था, 14वां गोल जो शन चिंग की तरफ से आया था, उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की थी। केवल 30 सेकंड बचे थे जब शंग का वो गोल आया था और डेफिसिट को उन्होंने 2 से घटाकर 1 पर लेकर आए थे। लेकिन वो 2 गोल का जो कुशन था हांगकांग के लिए पर्याप्त था और अंतिम क्षणों में जब काउंटर अटैक बनाया तो पूरे समय गेंद को पोजेस करके कोई भी अवसर नहीं दिया। यह है इस मैच का परिणाम।